गाइस मीनवाइल जस्ट थिंक कि जब मैंने जो फॉर्म आप सब लोगों के साथ रजिस्टर करवाया था फॉर द रजिस्ट्रेशन, in that I have got many questions related to the IoT development and the STM32 questions related to MSP and all such things. All such questions will be discussed after the 30 minutes of webinar in the discussion time. Okay, so you are free to ask questions at that point. I will be also taking queries which are asked in the form. Okay, so by just 4-5 we will start the webinar, starting with the firmware development or with the embedded C or embedded systems are related to microcontroller kind of things. So first thing, like what I have found is that Arduino has made it's very good for beginners for starting out the things, but it has made us very much in a kind of shady area that it's so much easy for interfacing microcontrollers in real life, because in actual there is nothing kind of things which Arduino provides the already built-in libraries, the easiness which is provided by Arduino. So I will be taking those kind of things, that what are the architecture, what are all the things and how to start, and main thing, what is the reason behind the embedded C, what is the significance and use when we have already C language, C++ language, firmware development, and it's organized by Get2Byte and with BBB IEEE. Starting with the embedded C. Now, as you all know, the topic of our is how to start with embedded C programming and firmware development. So first of all, starting with this, it's very important to understand that why is it embedded C programming used, and in which why is its need. So for understanding now, like we first get to know the applications of embedded systems and microcontrollers. So like you take any field, you take IoT, automation, automotive or avionics, anywhere, any field where microcontroller is used, there will be use of embedded C programming, as it forms the niche of all these fields. Why so? You will get this question in just after 4 to 5 slides. So like in automotive sector, we use things like sensors for safety purpose, or automation or automatic vehicles, electric vehicles. Whole thing is in automation, like we can control the doors and all the windows. In automation also, industrial automation, PLCs, timers, counters, and IoT also, all such things you must have seen, or if you have done projects related to this or read about this, there is use of microcontrollers. Now another thing is that from the survey which I have got for the web from the form, you all must have worked on Arduino, so you all must have get to know with terms like UART, SPI, I2C, UART, GPIO, and interface sensors like RFID, potentiometer, I2C, GPS, GSM. And for interfacing these with Arduino, we have already built-in libraries. Okay, we directly use them and we interface them according to our application code and modify them. But in actual, we never use Arduino. None of these applications, automotive, automation or IoT, we never use Arduino platform or Arduino controllers. They are good for beginners for starting out the things, but for actual product or project they are not preferable. So in those cases we use controllers like STM32, microchip SAMD based controllers, RANCs controllers, and many other controllers are there for MediaTek and Texas. So now the question comes that how is embedded C programming and what is its significance between all these microcontrollers. Okay, so now like I told you, the applications of embedded systems and microcontroller. So it's applications in automotive, and now there is a thing called that according to the application, there we use peripherals like UART, I2C, SPI. For automation we use GPIO, timers or counters. IoT we use onboard protocols. Now let's say we are for automation or IoT, we use different microcontrollers like we use Nordic, okay, and like I told you, we use STM32 microchip or these. So all these have the different peripherals on them, but there are like this, these peripherals are inside the microcontroller, which
connect the microcontroller to the outside world. Okay, now these peripherals can be different according to the microcontrollers. Like in Nordic NRF 5280, we have so many kinds of peripherals. So these clock, then we have GPIO pins, we have EasyDMA. All these are the debug peripherals depending upon the application and depending upon the high-end microcontrollers we have. In the Arduino, we have peripherals like analog to digital converter, triple EROM, JTAG for the debug interface, timers, counters, SPI, TWIs, I2C only, and all such things. So now thing is that what we actually do, we connect the sensors or modules to our microcontroller via peripherals. Now these peripherals rely inside the microcontroller via electronic circuits. All these the timers is in itself is an electronic circuit. UART is in itself is an electronic circuit which follows a communication protocol or standard for which it is defined. So now think what happens is that all such things electronic circuits are rely inside the microcontroller in the tiny chip which we see like Atmega 320 DOSes. So that thing is done by the VLSI kind of thing. That is completely different field. We will not go into that thing. I'm just telling you. Okay, so now what we do, that if we need to interface any sensor or module for any application, for any IoT, automation, automotive, because the sensors will be interfaced via only peripherals. Okay, so we do that by the, so like you can see here there are many depending upon the microcontroller, like ARM Cortex, it has number of extra peripherals. USB, UART is quite common. USB, there CAN protocol is there. Then there are SAR protocol for the automotive sector. DMA is for like dynamic memory management kind of things. It's just like an interrupt. It's not like an interrupt, but it is compared with the interrupt. So you will get to know in the YouTube channel tutorials about that. Okay, so now what thing is that all these peripherals through which we connect sensors or modules rely inside a microcontroller. Now these peripherals or registers, what kind of things how we can access them. So if you go into the data sheet of microcontroller, you directly go into any peripheral. Like I say, I go to the 8-bit timer, directly go to the register description. So there we have all these settings. We have all the you can say special memory locations. Like you just take it as an example that हमारा एक सिंपल एलईडी का सर्किट है. अब एलईडी के सर्किट को अगर हमें ऑन करना है तो उसको स्विच को दबाते हैं, ऑफ करना है तो स्विच को वापस दबाया, उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है तो पोटेंशियोमीटर से या डिमर से हमने जो भी उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर लिया. सो इन द माइक्रो कंट्रोलर ना स्विच वाली चीज, वोल्टेज की एलईडी कितनी देर जलानी है, उसको डिमर करना है, ऑल सच काइंड ऑफ सेटिंग्स can be done via registers, memory registers, which we call them as peripheral registers. So you take any sensor, if you name any sensor like RFID, OLED screens, or any sensor related to any field like avionics, automation, or this, they all interface via peripheral. Now those peripherals are connected to microcontroller, and those we can use those peripherals using the registers. So this is an important thing which we need to understand, that for embedded C is like a niche for many technologies, for many fields. If we get to know how to use embedded C programming, how to do that, we can do it's not like that you can make interface any sensors, but you will get an idea, you will know the approach and the things to do for doing that thing. And as these registers for the, like this is for the 8-bit microcontroller Arduino. If you go for the like higher base microcontrollers like Nordic or STM32, there you will see there is a register description also, but in the range of 32, like they have the bit width of 32 bits. Like it's a 32-bit microcontroller. Why is it say so? Because its registers are of length 32-bit. 8-bit has registers of length 8-bit. 16-bit have registers of length 16-bit. Now what does this each bit do and what does these registers do? These registers actually
fully configure our peripheral, like setting अपना like just it's like I said it's an electronic circuit. सो अगर आप कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लोगे, लाइक एलईडी का ले रहे हो या आप कोई सा नॉर्मल सा एलईडी फेड इन फेड आउट का कर रहे हो, एलडीआर का है, 555 टाइमर के है। सो फर्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, हम पहले आईसी को लगाते हैं, उसके साथ रजिस्टर लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, ताकि हमारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो। वो वाली चीजें हम माइक्रो कंट्रोलर में कैसे करते हैं, थ्रू रजिस्टर्स। So there is a whole register description here कि which register does what, the control register, status register, input output register, कि हमारा इस रजिस्टर पे डाटा आएगा जाएगा, हम मॉनिटर करेंगे एंड ऑल सच काइंड्स ऑफ थिंग्स। ओके, सो दैट्स वाई ओनली कि हम ये कहते हैं कि बाइनरी वैल्यूज कंट्रोल द वर्ल्ड। ओके, because it's literally like if you have followed my YouTube videos, then it's literally like just by a zero, changing a bit from 0 to 1 or 1 to 0, I can literally control the home lights of my room, and I can control anything. So depending upon the application, depending on the peripheral we are using and its bits. Now there is another thing. Now okay, so we have electronic circuits that for the peripherals that we use. Okay, and we we use peripherals, and now those peripherals are in the form of electronic circuits in a microcontroller. नाउ द थिंग इज कि अब मैंने जैसे बताया हम रजिस्टर्स को यूज कर सकते हैं, तो अब हम क्या करना है, अगर मुझे एलईडी को कंट्रोल करना है तो मैं डायरेक्ट पेरिफेरल रजिस्टर्स को यूज करूं, उसके बिट्स को ऑन ऑफ टॉगल 0 1 वो करूं अकॉर्डिंग टू द लाइक सर्किट को ऑन ऑफ करना है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं बिट्स में जो रजिस्टर डिस्क्रिप्शन होगी उनको रीड करके करूं। बट दिस थिंग इज वेरी टीडियस एंड कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग व्हेन इट कम्स टू अ होल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। लाइक यू टेक कि अगर मुझे 100 एलईडीज कंट्रोल करनी है या मेरे पास 4 यूआर्ट के डिवाइसेस है और 6 मेरे पास एसपीआई के है, तो हर बार मैं रजिस्टर्स के साथ खेलूं, इनके कौन सी बिट ऑन करनी है, कौन सी बिट को यूज करना है, कौन सा कॉन्फ़िगर करना है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कि मैंने ये यूआर्ट का वो बना रखा है डिवाइस ड्राइवर। ओके, सो इन दिस व्हाट आई एम डूइंग कि मैंने इंडिविजुअल यूआर्ट इनिशियलाइज, यूआर्ट टीएक्स कार, दिस इनिशियलाइजेस द यूआर्ट सीरियल कम्युनिकेशन, दिस इनिशियलाइजेस द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो इसके मैंने स्पेसिफिक रजिस्टर्स बनाए थे कि सिंगल करेक्टर ट्रांसमिट करेगा, सिंगल करेक्टर रिसीव करेगा। अब मान लो मुझे प्रॉपर गेट टू बाइट को ट्रांसमिट करना है, सो इट विल बी नॉट वेरी इजी एंड लाइक अ प्रैक्टिकल काइंड ऑफ थिंग कि मैं हर बार वाइट टीएक्स कार से एक एक करेक्टर को ट्रांसमिट कर रहा हूँ। इट विल बी वेरी टीडियस एंड द प्रोग्राम विल वेरी बिकम लार्ज when the things come complex. So engineers have come up with an idea. What they form a proper set of layers for microcontroller coding, and those layers we name as low level device driver, hardware abstraction layer, middleware, and the application layer. Now the thing is, what these do is that first these low level device drivers and hardware abstraction layers, these are actually those software packages that actually play with those peripherals. मतलब ये हमारा सारा कोड पेरिफेरल्स से बना देंगे हम, जो पेरिफेरल्स के कौन से रजिस्टर्स को एक्सेस करना है, कब कौन सी सेटिंग करनी है, वो सारा पार्ट आता है लो लेवल डिवाइस ड्राइवर और हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर के अंदर। ओके, देन फ्रॉम द मिडलवेयर एंड एप्लीकेशन लेयर इज द एक्चुअल जो हम अपना सेंसर इंटरफेस कर रहे हैं या जो हम एक्चुअल काम करेंगे। टू गिव इट एन एग्जाम्पल, लाइक आई गिव यू कि जैसे मैंने एक सिंगल करेक्टर को ट्रांसमिट करा, एक सिंगल करेक्टर को रिसीव करा, अब मुझे प्रॉपर करेक्टर्स को रिसीव करना है। सो ये वाला पोर्शन, मेरे ये 3 फंक्शन तो हो गए डिवाइस ड्राइवर एंड ऑल दीज। इसके बाद ट्रांसमिट कर, मुझे करेक्टर्स को रिसीव करना है, मुझे करेक्टर्स को ट्रांसमिट करना है, एक स्ट्रिंग को ट्रांसमिट करना है, बिट को करना है, डेसिमल को करना है, ये सारे मेरे हो गए हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। वाई? क्योंकि ये वो फंक्शंस है जो हम एंड यूजर को आसानी से उस पेरिफेरल के फीचर्स को यूज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। सो एज इट्स नेम सेज कि हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, ये हार्डवेयर को बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट लेयर में डिवाइड कर देता है एंड वी कैन इजीली यूज दोज फंक्शंस फॉर आवर एप्लीकेशन कोड। ओके, सो नाउ आई होप यू ऑल गेट टू नो कि हमारा पेरिफेरल्स का क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कैसे से चीजें होती हैं, लाइक नॉट एग्जैक्टली कैसे चीजें होती है मैंने वो बताई, बट एक बेसिक आर्किटेक्चर और कॉन्सेप्ट समझाना था मुझे कि एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग की नीड किधर आती है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नो हाँ, इससे एक चीज और इससे पहले
कि जो एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग है वो एक्चुअल में है क्या। सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस, तो जैसे हमें कॉलेज या स्कूल में हम कोर्सेज में या स्कूल में भी काफ़ी बार 12th तक होती है, या ओडीमी एंड ऑल सच कोर्सेज से हम सी प्लस प्लस सी सीखते हैं। बट एम्बेडेड सी का नाम अलग से, एम्बेडेड क्या है उसमें अलग से चीज़ क्या है। टू बी ऑनेस्ट एम्बेडेड सी कुछ अलग नहीं है सी और सी प्लस प्लस से। इट्स जस्ट अ थिंग दैट इन विच इंस्टेड ऑफ जस्ट अ सेकेंड, या ये नॉर्मल सी लैंग्वेज ही है, प्रॉपर सी लैंग्वेज है, बट इंस्टेड ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स विच वी यूज इन अ प्रॉपर, विच यू मस्ट हैव डन विद द उडीमी कोर्सेज और इन द स्कूल्स, हम उनकी जगह ना इन हार्डवेयर रजिस्टर्स को यूज करते हैं। सो ऑन दिस पेरिफेरल रजिस्टर्स, जैसे कि ये मेरा यूआर्ट बॉड रेट, ये एक मेरा हार्डवेयर पेरिफेरल रजिस्टर है। ओके, इफ आई गो टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन, यूबीबी R0 एक मेरा पेरिफेरल रजिस्टर है, तो इसको मैंने असाइन करा है। ऐसे ही मेरे ये एक पेरिफेरल रजिस्टर है जिसमें मैंने TXCN और ये सारे मेरे पेरिफेरल बिट्स है। तो व्हाट एक्चुअली एम्बेडेड सी इज, इट्स जस्ट अ नॉर्मल सी लैंग्वेज, बट in this embedded C, instead of proper variables and constants, we use the hardware microcontroller peripheral registers for modification, for storing, for assessing and for monitoring the things। जैसे कि अब इधर मेरा एक ये फंक्शन है while, सो ये बेसिकली मॉनिटर कर रहा है कि जब तक मेरा करेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये मेरा कोई वेरिएबल या कांस्टेंट नहीं है डिफाइन, यूजर डिफाइन, इट्स एन अ वेरिएबल और कांस्टेंट विच इज डिफाइंड बाय द हार्डवेयर माइक्रोकंट्रोलर पेरिफेरल, कि ये मेरा ये एक पेरिफेरल रजिस्टर है। सो एम्बेडेड सी इज जस्ट अ नॉर्मल सी लैंग्वेज, इट्स नथिंग डिफरेंट देन सी प्लस प्लस, it's just that it's used in a different manner than a C++ language in terms of variables and constants। okay, so I hope आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया हो। एंड हार्डवेयर सेक्शन लेयर जैसे मैंने बताया, उन्हीं लेयर्स को, उन्हीं डिवाइस ड्राइवर को इजी टू यूज फंक्शंस बनाने के लिए हम हार्डवेयर सेक्शन लेयर कहते हैं। और एप्लीकेशन लेयर हो गया हमारा, एप्लीकेशन लेयर, हाँ एप्लीकेशन लेयर हो गया कि अब एक्चुअली में जो हम कंट्रोल, जो हम सेंसर यूज कर रहे हैं उसको हम इन डिवाइस ड्राइवर्स की मदद से करते हैं। लाइक इफ आई गिव यू इट्स एग्जांपल, जैसे कि मैंने ये RS23331 टाइमर मॉड्यूल है, इसको इंटरफेस कर रखा है। सो इफ यू आर सीइंग हियर, तो ये देख रहे हो आप, मैंने RTC3231 को इनिशियलाइज करना है, RTC31 का टाइम को रीड करना है, तो उसके लिए मैंने फंक्शंस कौन से यूज करे, TWI start, TWI write, TWI write data। Now what all these are the hardware section layer and the device driver, and this function comes under the application layer, कि मैं अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली अपने हार्डवेयर और अपने डिवाइस ड्राइवर्स को यूज कर रहा हूँ। सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ हो। जस्ट अ थिंग, देन उसके बाद हम जाएंगे कि हाउ टू स्टार्ट विद एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग। नाउ जो हमारे अब जैसे कि मैंने बताया आर्डिनो में तो हमने सारी चीज़ें ऑलरेडी बनी हुई होती है, हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सीधा इजी टू यूज फंक्शंस है, इनको यूज करते हैं और इनके अंडर ही, इन्हीं फंक्शंस के अंडर ये सारी की सारी लेयर्स रिलाई हो रही होती हैं। इफ आई गिव यू इट्स व्यू, जैसे ये मैंने एक आर्डिनो कोड एटमॉस स्टूडियो पे खोल रखा है, ओके, एंड इट्स एन अ स्केच फॉर द कीपैड मॉड्यूल। अगर आप इसके मॉड्यूल, इन फंक्शंस के गो टू इम्प्लीमेंटेशन पे जाओगे, सो यू विल सी, ये देखो पूरा सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल डॉट अवेलेबल, सीरियल डॉट पीक, सीरियल डॉट रीड, इनके फंक्शंस बन रखे हैं। इट्स लाइक एन हार्डवेयर सेक्शन लेयर। अब जब मैं इनके अंदर भी जाऊंगा तो प्रॉपर मुझे इनके डिवाइस ड्राइवर मिलेंगे जिसमें ये लोग प्रॉपर पेरिफेरल रजिस्टर्स को एक्सेस कर रहे होंगे। ओके, सो दैट्स द वे Arduino is done, and it has provided all the kinds of LL, API and hardware section layer, APIs for the device driver, HAL, middleware and application layer। but actual में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में वी ourself form its like device driver और हार्डवेयर सेक्शन लेयर। तो हमें हर एक माइक्रो कंट्रोलर के जो वेंडर्स होते हैं, अगर आप STM का ले रहे हो या RANSys का ले रहे हो, जैसे मैंने ऊपर बताया था, तो उन सबके हमें वो लोग APIs देते हैं। बट कि एप्लीकेशन लेयर बनानी है ना, जैसे ये कीपैड मॉड्यूल का या RTC का मैंने इसमें बना रखा है, तो वो वाली चीज़ हमें खुद डिवाइस ड्राइवर्स और हार्डवेयर सेक्शन लेयर्स को समझ के बनानी होती है। सो फॉर मेकिंग दैट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड डिवाइस ड्राइवर कैसे काम कर रहा है, हार्डवेयर सेक्शन लेयर कैसे काम कर रहा है, तभी जाके हम अपने सेंसर को इंटरफेस कर पाते हैं, या मॉड्यूल को, या कोई सा भी कम्युनिकेशन मॉड्यूल है, कुछ भी है इन एनी फील्ड। ओके,
सो नाउ द बिग क्वेश्चन कम्स कि अच्छा ठीक है, मैंने काफ़ी बता दिया एम्बेडेड सी होती क्या है और उसका पूरा स्ट्रक्चर, इसको स्टार्ट कैसे करना है. नाउ कम्स द थिंग, the best way for recommended for beginners to start with embedded C programming is take any MCU and 8-bit microcontroller. You can take STM8, but I will not recommend STM8 because वो इतना open source नहीं है. But Arduino, PIC or 8051, these are all three which are favorite 8-bit microcontrollers for beginning. I have started with Arduino and I have also interfaced all the uploaded many its videos and with including device drivers. Okay, you can check them in the YouTube page. So take any microcontroller and now remember this thing that what like मैंने जैसे ये बताया ना स्ट्रक्चर, हम इन्हीं स्ट्रक्चर को फॉलो करना है आपको. वी फर्स्ट फॉर्म अ डिवाइस ड्राइवर, देन वी विल फॉर्म अ HAL and then we will finally form the application code. Now things comes कि डिवाइस ड्राइवर के लिए ना what exactly knowledge kind of thing you need, HAL के लिए क्या चाहिए और एप्लीकेशन कोड के लिए क्या चाहिए, उस पर अभी हम आते हैं. बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो काफी लोगों ने मेरे से पूछा था कि सी और C++ लैंग्वेज की कितनी नॉलेज होनी चाहिए फॉर स्टार्टिंग आउट दीज थिंग्स. गाइस टू बी ऑनेस्ट, मुझे सिर्फ जितना मैंने इस पे दिख रहा है आपको फ्रेम पे, मुझे सिर्फ इतनी ही नॉलेज थी. मुझे स्ट्रक्चर्स, क्लासेस, पॉइंटर्स, रिंग बफर और इन सब के बारे में नॉलेज नहीं थी. बट द थिंग इज कि ये बेसिक नॉलेज अगर आपको है, सो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद डिवाइस ड्राइवर्स. नाउ आई टेल यू अ थिंग, अब क्या होगा कि ओके आई विल जस्ट गेट बैक टू दैट पॉइंट आफ्टर अ वाइल, कि जैसे मैंने बताया डिवाइस ड्राइवर के लिए यू शुड हैव नॉलेज ऑफ हार्डवेयर एंड द माइक्रो कंट्रोलर, कि उसके पेरिफेरल्स कौन कौन से हैं, कैसे काम करते हैं, रजिस्टर कौन सा क्या करता है, CPU क्या करता है, उसका प्रॉपर एक माइक्रो कंट्रोलर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. फॉर फॉर्मिंग द HAL, फॉर दैट थिंग यू नीड अ प्रॉपर गुड नॉलेज ऑफ C और C++ लैंग्वेज वेयर यू यूज क्लासेस, स्ट्रक्चर्स और पॉइंटर्स. एंड एप्लीकेशन कोड के लिए आप जो भी अपना सेंसर या मॉड्यूल यूज कर रहे हो उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए. सो नाउ मूविंग स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट थिंग इज डिवाइस ड्राइवर. नाउ डिवाइस ड्राइवर अगर आपको जैसे कि मान लो अब आप जैसे इसमें मैंने काफ़ी सारे आपको बताए थे कि मिनट जैसे कि मैंने बताया कि हमारा एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर होता है, टाइमर्स होता है, काउंटर्स होता है. तो एग्जैक्टली टाइमर्स होता क्या है, काउंटर्स होते क्या हैं, यूआर्ट होता क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो मैं कह रहा हूँ, तो यूआर्ट के अंदर कम्युनिकेशन बस क्या करती है, RX TX पिंस का क्या रोल है, बॉड रेट का क्या रोल है. Try to understand all such things. Just Google out the peripheral and read from the data sheet. And even if a single word you don't understand from the data sheet, just directly Google it. मैं कसम से यही मतलब what I recommend to, like I have talked with many seniors also to me, those who are very much experienced to these in the field, and they only have suggested कि data sheet is the best reference manual, not kind of any डेट के आपको कहीं से नोट्स मिल जाएंगे या वो डाटा शीट इज द बेस्ट काइंड ऑफ थिंग. एंड उसमें जो भी आपको वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इधर मेरा पावर सुपरविजन का मतलब क्या है, इसका रोल क्या है, जस्ट डायरेक्टली गूगल इट. यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू दिस टर्म. देन वेन यू रीड दिस टर्म यू विल गेट टू नो सम न्यू टर्म्स, आप उन्हें पढ़ो. एंड इन द एंड ना जब आप 3-4 बार ये साइकिल चलाओगे यू विल फॉर्म अ कनेक्टेड कि अच्छा मेरा माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इसका ये रोल होता है और ये इस तरीके से काम करता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज अंडरस्टैंड द पेरिफेरल वर्किंग एंड पिन आउट. पेरिफेरल कैन बी UART, CAN, USB, I2C, timers, counters, GPIO, anything. Then go to the register section of the microcontroller for any peripheral, like let's say I go for UART. Okay, and I will go to register description. Okay, so now इसमें आपको प्रॉपर रजिस्टर डिस्क्रिप्शन दिखेंगे. स्टार्ट रीडिंग दिस एंड अंडरस्टैंडिंग दिस. इट मस्ट बी वेरी टायरिंग इफ यू हैव ट्राइड दिस, कि इसकी रजिस्टर्स को समझ के, और समझ कई बार चीजें नहीं समझ में आती, बट इट टेक्स टाइम. इनिशियली इट विल टेक टाइम, बट इफ यू कीप ऑन डूइंग इट you will be able to get the things. Okay, so now coming, okay, so in the register section, हाँ अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अब कोई सा भी मेरा सर्किट है, जैसे मैंने बताया डिवाइस ड्राइवर है, तो उसमें तीन बेसिकली स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज इनिशियलाइज, सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन. बॉड रेट को सेट करना है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी को सेट करना है, MSB LSB को सेट करना है, ऑल सच काइंड्स ऑफ थिंग्स. देन कम्स द मॉनिटर और इनपुट आउटपुट डाटा.
कि हम डाटा आ रहा है जा रहा है उसको कैसे कौन से रजिस्टर से एक्सेस करना है, एंड ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स. एंड देन द लास्ट स्टेप कम्स द एंड. ऑल काइंड ऑफ थिंग्स यू विल बी फाइंडिंग इन माई यूट्यूब चैनल. इधर मैंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई हैं कि कैसे डिवाइस ड्राइवर बनाते हैं एंड उसके लिए कैसे डाटा शीट से रीड करी जाती हैं चीज़ें. ओके, फॉर एनी क्वेरी यू कैन ऑफ कोर्स रेफर टू अस ऑल्सो, एंड द बेस्ट guide for all such kind of things is your data sheet, microcontroller data sheet. Okay, then comes the another thing. हाँ, इसमें मुझे एक चीज़ आपको दिखानी थी कि अब मैं आपको आर्डिनो के अगर डिवाइस ड्राइवर दिखाऊं, सो लेट मी जस्ट शो यू. इफ यू विल गो टू द आर्डिनो फाइल इन कंप्यूटर एंड आर्डिनो को, यू विल फाइंड कि इसके अंदर भी हमारी सारी वायरिंग की डिजिटल, इसके अंदर भी हमारी प्रॉपर डिवाइस ड्राइवर्स माइक्रो कंट्रोलर के अंदर वो आर्डिनो आईडी बाय डिफॉल्ट ही डाल देता है. तो वी हैव फाइल्स लाइक हार्डवेयर सीरियल डॉट सीपीपी, हार्डवेयर, ये तो सारी हमारी सीपीपी सोर्स फाइल्स है. इंक्लूड फाइल्स पे जाओगे तो आपको सारी डॉट एच फाइल्स भी मिलेंगी. ओके, so here there are whole .h files, where in the .h files include files actually हमारा जो पेरिफेरल रजिस्टर्स की सारी मेमोरी मैपिंग हो रखी होती है. ओके, नाउ कम्स द अनदर थिंग HAL. ये वाली है जिससे आपकी C और C++ लैंग्वेज काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगी जस्ट हैविंग दिस बेसिक नॉलेज. मैं आपको बताता हूँ कैसे. थिंग इज कि अब HAL है, जैसे इट्स द हार्डवेयर सेक्शन लेयर. एज आई टोल्ड यू कि जैसे मैंने ये 3 ड्राइवर बना लिए. ओके, मैंने डिवाइस ड्राइवर बना लिए ये 3, और उसके बाद अब मुझे ये हार्डवेयर सेक्शन लेयर बनानी है. नाउ द बेस्ट सोर्स फॉर मेकिंग द हार्डवेयर सेक्शन लेयर इज बाय रीडिंग ऑलरेडी बिल्ट इन लाइब्रेरीज ऑफ द आर्डिनो. आप जब उन लाइब्रेरीज को रीड करोगे ना, आपकी आधी C और C++ लैंग्वेज उधर से इंप्रूव होने लगेगी विद नोइंग इट्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे है. लेट मी टेल यू अ थिंग. मैंने ना वो लाइक लास्ट मतलब कुछ 3-4 महीने पहले आई वॉज डूइंग सच हार्डवेयर सेक्शन लेयर पर ही काम कर रहा था, और मुझे यूआर्ट का प्रॉपर वो बनाना था, रिंग बफर काइंड ऑफ थिंग. ओके, सो रिंग बफर में मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे बनानी है, कैसे चीज़ें होती हैं. अभी इसका कोड को खोलने में टाइम लगेगा. आई जस्ट टेल यू थिंग में कि ओके, मैं आपको जस्ट थिंग बताता हूँ कि रिंग बफर वाली चीज़. सो फॉर दैट थिंग ना देर इज अ यूज ऑफ कॉन्सेप्ट व्हाट वी कॉल्ड एज स्टैक्स एंड क्यूज. नाउ आई हैव नॉट read about stacks and queues or classes, but I read the inbuilt libraries of Arduino. Inbuilt libraries of Arduino के अंदर, इनके अंदर you will find whole let me show you, let me open anything. Okay, yeah, hardware serial dot cpp को जैसे अगर हम खोलते हैं, सो इसके अंदर ना आपको चीज़ें दिखेंगी. इफ डिफाइंड है, ISR है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस यूज करे होते हैं. ओके, रुको, हाँ, ये जैसे इसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस यूज हो रखे होते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है, ये पॉइंटर्स का यूज कर रहे हैं, बिट शिफ्टिंग कर रहे हैं. सो व्हेन यू रीड ना डाटा शीट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, if you are not able to understand this, just directly copy this line which I have marked and google it. उधर ही आपको ना इसके 100 रेफरेंसेस मिल जाएंगे कि ये चीज़ है क्या. सो बाय दैट वे ना यू विल बी एबल टू एक्चुअली रिलेट कि अच्छा मेरी ये पॉइंटर्स इधर यूज हुआ है, इसका यूज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ऐसे होते हैं. यू विल बी एबल टू ग्रास्प इन अ वेरी गुड वे, क्योंकि आपको इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपने पहले समझा कि मुझे ये चीज़ करनी थी, तो इधर इन्होंने पॉइंटर्स यूज करा हुआ है ऑलरेडी बिल्ट इन लाइब्रेरीज में. तो अच्छा, अब ये इन यूज केसेस में मैं यूज कर सकता हूँ. सो दैट्स हाउ व्हाट दिस इज द मेथड विच आई यूज एंड विच मैनी सीनियर्स हैव आल्सो रिकमेंडेड मी. ओके, so by this your C++ will improve very much, and this forms the easy to use and the niche of the device driver कि यही है जो आपके device drivers को use करता है. and then the application codes में होता है कि हम लोग जो actual HAL बनाया है उनको हम use करते हैं for our application codes. for like example कि जैसे कि ये था, इधर मैंने Arduino कीपैड का खोल रखा है इन द कीपैड मॉड्यूल. तो जो मेरा ये वाला फंक्शन है कस्टम कीपैड, ओके, दिस एड्राफूट कीपैड रिंग बफर डॉट एच एंड एड्राफूट कीपैड डॉट एच. सो दिस इज द एप्लीकेशन लेयर कि ये इन्होंने मेरे देखो, इफ यू विल फाइंड आर्डिनो डॉट एच. ओके, सो आर्डिनो डॉट एच मेरी पूरी एप्लीकेशन वो HAL है.
इसके अंदर आपको AVR प्रोग्राम डॉट स्विच, इनके अंदर सारी की सारी जो हमारी सीरियल की, UART, I2C की है, उनकी ऑलरेडी लाइब्रेरीज बाय द डिफॉल्ट डली हुई है. सो डेट्स हाउ वी मेक द एप्लीकेशन कोड. कि सबसे पहले डिवाइस ड्राइवर बनाया. फॉर मेकिंग डिवाइस ड्राइवर, अंडरस्टैंड द पेरिफेरल, understand how it works, understand its pinout, understand significance of that peripheral, then understand its register description and just implement basic peripheral device driver for that. Then second thing, read the already built in libraries of those peripherals. Okay, उनसे आपको HCL का आइडिया लग जाएगा. You will get the idea of HCL. You will get many concepts clear for C and C++ language कि ये प्रैक्टिकली कैसे यूज होते हैं. क्लासेस का एक्चुअल में यूज किधर आता है. एक्चुअली में पता है क्लासेस का यूज और स्ट्रक्चर्स का यूज ना सिर्फ हमारा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होता. लाइक इफ यू कैन से ना कि जैसे सारा मेन काम तो रियल काम ओनली लूप्स और पॉइंटर्स और फंक्शंस या एरेज करते हैं. जो क्लासेस और स्ट्रक्चर्स करते हैं ना, दीज आर द थिंग्स विच ओनली आर द लाइक यू कैन से थिंग्स जो एक यूजर इंटरफेस आसानी से बना देते हैं. कि आपकी 10 लाइब्रेरीज बनी हैं जो एक ही डिवाइस ड्राइवर यूज कर रही है, तो उसके लिए हम एक क्लास बना देंगे डिवाइस ड्राइवर की और डायरेक्टली क्लास के ऑब्जेक्ट्स को कॉल करते रहेंगे एज पर आर नीड. जो हमारे 10 अलग अलग HCL है और वो डायरेक्टली उन डिवाइस ड्राइवर्स को बुलाता रहेगा. सो दैट्स हाउ स्ट्रक्चर्स और क्लासेस काइंड ऑफ थिंग्स आर यूज्ड. सो यू विल गेट दिस कॉन्सेप्ट वेरी मच क्लियर्ड. एंड देन फॉर एप्लीकेशन कोड, अंडरस्टैंड कि मेरा NRF24 L01 है क्या, काम कैसे करता है. उसके अंदर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, वो वाईफाई वायरलेस मॉड्यूल है, तो उसके अंदर कौन सा वो IoT के वो रेडियो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल कौन सी उसमें प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं, कैसे उसका पूरा कम्युनिकेशन बस होता है. फ्लेक्स सेंसर है, OLED स्क्रीन है, तो OLED स्क्रीन कैसे काम करती है, उसके अंदर रजिस्टर डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या चीज़ें हैं. एंड देन यू विल बी इजीली एबल टू रिलेट कि अच्छा अब मुझे इस SPI कम्युनिकेशन से करना है, तो SPI से मुझे अब ये डाटा भेजना है, इतनी क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे करना है. सो यू विल बी इजीली एबल टू डू यूजिंग द LL and the HL. Okay, so yeah, that's a kind of thing which I for the whole webinar.